हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। तो अभी मैं ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट कर रही हूँ, मेंस का फर्स्ट मॉक टेस्ट। तो मैंने करंट अफेयर और रीजनिंग कर लिया है, तो मैं अब इंग्लिश करने जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ रिकॉर्ड कर लूँ, तो इसलिए मैं उसको लाइव कर रही हूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला सेक्शन सबमिट कर देते हैं, इसके क्वेश्चंस हो गए हैं जितने आते थे। सो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश का सेक्शन होगा इसके बाद। तो यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे जो पहले आ रहे हैं, इजी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। टूरिज्म ऑफर्स अ वाइड रेंज, ऑप्शन से करते हैं। ए का थर्ड, tourism offers a wide range of benefits including economic benefits for countries attracting a large number of visitors due to the money they spend not only on their actual stay but also on local businesses. It also provides a large number of jobs for people working in the transport and hospitality industry, among others. Third, tourism is helpful for economies as it is serviceable for local businesses and provides jobs to various people. तो ए का थर्ड तो सही जा रहा है ना, यहाँ पे टूरिज्म के बारे में बात कर रहा है, उससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, सेम चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ए और थर्ड सही है, बाकी तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। बी वन चेक कर लें क्या। Korean culture comprises all of its history, customs, traditions, and beliefs. It has been shaped by each of its different dynasties, wars, changes in religious beliefs, the modernization of world as a whole, and many other customs and traditions that have passed on between generations, experiencing slight change with each generational pass. Korea's vibrant cultural legacy, comprising architecture and cuisine, offers a delightful combination of tradition and modernity. तो यहाँ पे कोरियन कल्चर की बात कर रहा है, ठीक है, ट्रेडिशनल कस्टम और हिस्ट्री बिलीफ सारी चीजों के बारे में। यहाँ पे कल्चरल लिगेसी के बारे में बात कर रहा है। कौन सा सेंट्रल आइडिया, ओके मुझे लगा मैच द कॉलम्स है। ओके यहाँ पे पैसेजेस लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल आइडिया कौन सी है। तो ए वाला और थर्ड वाला करेक्ट है कि क्या क्या चीजें ऑफर होती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं टूरिज्म के, और उससे क्या होता है कि इकोनॉमी पे ओवरऑल उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, इकोनॉमी इंक्रीज होती है और बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, ये सारी चीजों की बात कर रहे हो। तो ए और ई मुझे सही लग रहा है, बट ये कोरियन वाला मेरे को रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो हिस्ट्री, उनके ट्रेडिशन, सारी चीजों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अलग चीज बात कर रहा है, आर्किटेक्चर एंड ऑल। यहाँ पे कोई आर्किटेक्चर की बात नहीं की गई है, राइट। तो मुझे ये रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे। तो अगर ए थर्ड सही है तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी कंक्लूसिवली आंसर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे जैसा ये दिया हुआ है। चलो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। फॉर द लास्ट 6 years, ओएसी and his team at the University of Virginia in Charlottesville has been hammering out a third path to the good life point, psychological richness. Their research suggests that the ingredients of rich life come out from stability in life circumstances or in temperament. Rather, the path to a rich life arises from novelty seeking, curiosity, and moments that shift one's view of the world. Rich experiences are neither inherently good or bad. They may be intentional or accidental, joyous or traumatic. The research appearing online August 12 in Psychological Review found that major life events such as divorce, career changes, personal tragedies linked to higher richness, but not meaning or happiness. The researchers asked more than 3,100 people across 9 countries to score 15 terms on how closely they describe their ideal lives on a scale from 1 not at all to 7 very much, and the participants were forced to choose which life they described the most, happy, meaningful, or rich. 50 to 70% of respondents choose terms reflecting happiness, itna percent choose meaning as their ideal, and itna percent choose to psychological life. Which of the following can be conclusively answered? How can one pursue a good life? How can pursue a good life? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि rather the path to rich arises from novelty, seeking curiosity, movements that shift from one's view to the world. Rich life comes from stability in such circumstances or temperament.
रेदर, तो जो ये वाली लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ से आप ये वाला आंसर कर सकते हो कि हाउ कैन वन परस्यू अ गुड लाइफ, तो पहला सही लग रहा है। डू पीपल डिजायर एन इंटेंस अनप्रेडिक्टेबल एंड चैलेंजिंग लाइफ, सो यहाँ पे क्या चैलेंजिंग लाइफ, द रिसर्च अपीयर्स ऑनलाइन, divorce, career changes, personal tragedy, and all. Desired most alive. So research suggests ingredients of rich life come from stability, not stability in the circumstance or temperament, rather good or bad. क्या लिखा है? डू पीपल डिजायर एन इंटेंस अनप्रोडिक्टेबल एंड चैलेंजिंग लाइफ, वॉट शुड वन प्रेफर इन लाइफ, हैप्पीनेस, मीनिंग और साइकोलॉजी। तो इसका तो बिल्कुल आंसर थर्ड का नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे तीनों के बारे में डेटा निकल के आया है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे हैप्पीनेस या किसी एक को प्रेफर करना है लाइफ में, तो ये थर्ड तो नहीं होगा। थर्ड की वजह से तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड होगा या सिर्फ फर्स्ट होगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला डू पीपल डिजायर एन इंटेंस अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजिंग लाइफ, सो मुझे थर्ड सेकंड सही लग रहा है। यहाँ पे इस पैसेज को पढ़ के लग रहा है कि एक्सपीरियंसिंग नाइदर इनहेरेंटली गुड और बैड मेंशन, और दे मे बी इंटेंशनल और एक्सीडेंटल, जॉयस और ट्रॉमेटिक। ऑनलाइन रिसर्च साइकोलॉजी फाउंड द मेजर लाइफ इवेंट्स, डिस्क्राइब द आइडियल लाइफ स्किल फ्रॉम इतना। तो ये सही है ना कि यहाँ पे लोगों ने ये सारा जो इस डेटा में निकल के आया उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा है कि 50 to 70% रेस्पोंडेंट्स चूज टू रिफ्लेक्ट देयर हैप्पीनेस। वो थर्ड होगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ रिस्क ले लेती हूँ। फर्स्ट और सेकंड मुझे यहाँ सही लग रहा है क्योंकि दो ही ऑप्शन में से एक हमें चूज करना है। Which of the following could be appropriate title for the passage? Okay, to measure these effects, a team led by Paul Pfaff at the University of California, Irvine asked of their participants to watch a 5 minute clip of BBC's Planet Earth series, composed of grand sweeping shot of science vistas, mountains, plains, forests, and canoe. Rest was the 5 minute clip of funny animal videos or a natural video about DIY, and the participants then rated the extent to which they agreed with the four statements, such as I feel the presence of something greater than myself and I feel small and insignificant. Finally, they took part in the experiment known as the dictator game, in which they were given a resource, in this case 10 raffle tickets of for a $100 gift voucher that they could choose to share with a partner if they so wished. The feelings of awe produced a significant change in this generosity, increasing the number of tickets that the participants shared with their partners through subsequent statistical analysis. And the researchers were able to show that this came through the changes to the sense of self, and the smaller participant felt, the more generous they were. तो यहाँ पे बताना है कौन सा appropriate title होगा। The Incredible Wonder of Life, The Dictator Game, How Awful Can Transform the Mind, Why Generosity is Important in Life, Our Planet Earth। Our Planet Earth का तो कोई सेंस नहीं है। ये लास्ट वाला जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि द फीलिंग ऑफ ऑ प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द जेनरसिटी, तो यही पूरे इसका पूरा जो पैसेज है वो माइंड के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। सो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट वाला नहीं होगा, जेनरसिटी इज इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो लास्ट वाला मुझे लगता है कि जो लास्ट पैराग्राफ होता है किसी भी उसका, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो क्या हो सकता है। द ऑफ कैन ट्रांसफॉर्म द माइंड, मुझे यहाँ पे थर्ड वाला सही लग रहा है। डिक्टेटर गेम का कोई सेंस नहीं है। देखो जो टाइटल होता है वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं होने चाहिए पैसेज में। यहाँ डिक्टेटर गेम लिखा है तो डेफिनेटली आंसर नहीं होगा। आवर प्लैनेट अर्थ, ये भी नहीं होगा। आवर प्लैनेट अर्थ का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है, तो ये दो ऑप्शन लेट हो जाते हैं। जेन्योसिटी इज इम्पॉर्टेंट, ये डायरेक्ट दिया हुआ था पैसेज में कहीं पे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो या तो सी होगा या फिर ए होगा। द इनक्रेडिबल वंडर ऑफ लाइफ, इनक्रेडिबल वंडर ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्टेटर फील प्रेजेंस दैट माई सेल्फ। मुझे यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में से एक लग रहा है। द इनक्रेडिबल वंडर ऑफ लाइफ भी हो सकता है, हाउ ऑफुल ट्रांसफॉर्म द माइंड, बट मुझे जो मोर सुटेबल लग रहा है
वो लग रहा है सी ऑप्शन। इसी के साथ जाते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, ओके तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट करना, ये इजी क्वेश्चन है, पहले इजी क्वेश्चन करते हैं वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, द इन्वॉल्व्स ऑफ साइकोसिस इन पर्टिकुलर, द इन्वॉल्व्स ऑफ तो होगा नहीं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हो सकता है, द ऑनसेट ऑफ भी हो सकता है। तो द ऑनसेट ऑफ मतलब किसी चीज की शुरुआत, तो बी से मुझे लग रहा है यहाँ पे सही होगा। द ऑनसेट ऑफ साइकोसिस इन पर्टिकुलर इन्वॉल्व्स स्ट्राइकिंगली सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रियलिटी, सी अपनी जगह सही लग रहा है मुझे। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बी ए सी होना चाहिए। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, इट डैश, इट प्रोसीड्स अ फ्रैटनिंग descent into mental illness which can terrify even the bravest. yes, तो ये जो डी है लास्ट में आएगा और एक ही ऑप्शन है, तो मुझे लग रहा है ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि दा के बाद यहाँ पे क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो ब्रावेस्ट सही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या करना है, which should not be altered any change addition, ओके इनको कनेक्ट करना है और कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, द इन्वॉल्व्स, the onset of psychosis in a particular involves a strikingly similar transformation reality, and it precedes a frightening descent into mental illness which can terrify even the bravest individual. The onset of psychosis is a particular strikingly similar transformation reality, but in आफ्टरवर्ड्स एनीवेज, मुझे यहाँ पे बट लग रहा है क्योंकि कंट्रास्ट लग रहा है, मेंटल इलनेस विच कैन बी टेरिफाई इवन द ब्रावेस्ट इंडिविजुअल, तो मेरे को यहाँ पे फर्स्ट लग रहा है। आफ्टरवर्ड्स का तो यहाँ पे कोई सेंस है नहीं, एनीवे भी नहीं होगा, बट लग रहा है क्योंकि अपोजिट बात कर रहा है। इसको करेंगे बाद में, पैसेज तो वैसे भी मेरे से नहीं होते हैं, तो इसको बाद में देखेंगे। यहाँ क्या करना है, आइडियम्स फ्रेज हाईलाइट सेकेंड सेंटेंस डिस्क्राइब्स द सिचुएशन। ओके, जो पहले में दिया है वो दूसरे में डिस्क्राइब कर रहा है, अगर सही सही तो वो आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लॉयंस से माई सिस्टर ग्रैब द लार्जेस्ट स्लाइस ऑफ द पिज्जा, तो ये तो सही है, लॉयंस से मतलब जो मैक्सिमम, ये तो सही लग रहा है। दे आर वॉस्टिंग द लॉयंस से माई सिस्टर ग्रैब द लार्जेस्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा, कौन सा फिट नहीं हो रहा ना, इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो थर्ड तो यहाँ पे सही है। मैन ऑफ स्ट्रॉ, I know him, he does not have the courage to take an important decision. सेकेंड थर्ड सही है, तो सेकेंड थर्ड एलिमिनेट अगर कर देंगे तो थर्ड ये भी नहीं, तो एक्सेप्ट फर्स्ट होना चाहिए। देखते हैं, मेक श्योर जॉट और टाइटल, ही लाइक्स टू जॉट डाउन एवरीथिंग। देखो जॉट और टाइटल का मतलब मुझे नहीं पता है, बट मैन ऑफ स्ट्रॉ और लायन से बी और मतलब सेकेंड और थर्ड सही है, तो एक्सेप्ट वन होना चाहिए, क्योंकि 100% सेकेंड थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना है यहाँ पे, ए सेंटेंस माइट हैव मल्टीपल एरर, इग्नोर द पंक्चुएशन। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड हैव द सेम एरर्स, सेम टाइप ऑफ एरर फाइंड करनी है। ओके, सेवग्री involves a system of impunity that makes clear to the perpetrators that they are doing is acceptable and must not cease. So acceptable must not cease, यहाँ पे CEES आना होना चाहिए ना, क्योंकि सीज का मतलब तो यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, सीज का मतलब तो किसी चीज को बंद करना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मुझे लग रहा है रॉन्ग है यहाँ पे। तो इस तरह की हमको वर्ब निकालनी है, वर्ब में एरर होनी चाहिए, राइट, वर्ब में एरर है, तो हमको ऐसी एरर फाइंड करना है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड लूजर, तो लूजर की स्पेलिंग यहाँ पे LOSER होना चाहिए, तो फर्स्ट का बी होगा, कई सारे ऑप्शन है यार। एज आई हैपन टू बी इन द नेबरहुड आई गो एंड पेड हिम कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स की स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, तो सेकेंड का डी, फर्स्ट का बी, सेकेंड का डी है ना, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट का बी सेकेंड का डी, तो यही आंसर होगा। She seemed disinterested in our problems, so we stop asking her for help. तो यहाँ पे ये तो इसमें वैसे भी क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट वाला भी सेम है कि लाइक द प्लांट्स यू सी अराउंड यू
cytoplankton give on off oxygen gas when they are use sunlight to turn carbon dioxide into sugar. So despite of, यहाँ पे despite of भी wrong है, but हमें सेम एरर निकालनी है. पहले में एरर क्या वैसे, like the plants you see around us, गिब्स होना चाहिए ना. क्या पढ़ेंगे इसको, फोटो प्लैंकटन पढ़ेंगे शायद, फोटो प्लैंकटन जो भी पढ़ेंगे इसको, इसके अकॉर्डिंग यहाँ गिब्स आना चाहिए. तो गिब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रॉन्ग है. तो डिस्पाइट ऑफ लेस देन 1 प्रोडक्ट ऑफ द ग्लोबल एलिमिनेशन, सम ऑफ द मोस्ट थ्रेटेन्ड बाय राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डिस्पाइट ऑफ तो नहीं लिया जाएगा. सो लाइक द प्लांट्स, यानी यहाँ गिब्स आएगा. तो गिब्स के अकॉर्डिंग क्या एरर हो सकती है. पहले वाले में तो कोई एरर लग नहीं रही है. सेकंड में देखते हैं, द ट्रांसपोर्ट सर्विस इज नॉट इक्विप्ड टू कोप अप विद, नहीं होता. ठीक है, कोप विद होता है, कोप अप नहीं होता है. सेकंड का बी ऑप्शन रॉन्ग है. तो सेकंड का बी किस में है, 2 ऑप्शन है. इसको चेक करेंगे. 1 के सी में कोई एरर है, थ्रेटनिंग बाय राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, सॉरी ये वाला नहीं है. फिजिक्स 333 आइलैंड्स इज सम ऑफ द मोस्ट, कोई एरर नहीं है 1 के सी में. तो 3B सेकेंड बी थर्ड का, लीडर शुड मेक इट रूटीन टू कीप ट्रैक ऑन व्हाट वाज सेड एट, टू शेयर दोज समरीज विथ अटेंडीज. ओके, टू कीप ट्रैक ऑन व्हाट वाज सेड, लीडर शुड मेक इट रूटीन. तो इसमें कोई एरर नहीं लग रही यार. बी में क्या एरर है, सेकेंड के बी में, थर्ड के बी में कोई एरर नहीं लग रही है. अरे यार इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में कोई एरर थी नहीं, तो पहला एलिमिनेट हो जाता है, राइट. तो अगर फर्स्ट का, तो यार यही होना चाहिए. इसमें एरर क्या है, बट फर्स्ट में तो कोई एरर नहीं है, तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं. सेकंड में कोप अप की जगह तो कोप विद आएगा, बट थर्ड में मुझे समझ में नहीं आ रहा. बट कोई ऑप्शन भी नहीं है ना नॉट द अबव, तो मुझे यही टिक करना होगा आई थिंक, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं. देन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरी सैटेलाइट डेवलपमेंट डंप स्पेंड, डंप्स होना चाहिए यहाँ पे एवरी सैटेलाइट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग. तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सी सेम है. एज सोशल एनिमल्स वन ऑफ अवर स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन इज होना चाहिए यहाँ पे सी में. तो 1 के सी में एरर है, वर्ब की एरर होनी चाहिए ना. तो 1 के सी में कई सारे ऑप्शन है. द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमनिस्ट आइडियाज इन द वेस्ट कैन बी लार्जली ट्रेस, कैन बी लार्जली, तो ट्रेस्ड होना चाहिए. सेकंड के बी में फिर एरर है, तो 1C सेकंड बी, तो एक ही ऑप्शन है. तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए आंसर, क्योंकि सेकंड के बी में क्या मिला. ओके, वर्ब की है ना यहाँ पे, SAIS लगा. ईच पर्सन हु नोज यू हैव, ईच पर्सन हु नोज, तो ईच के साथ हैज आना चाहिए. अगर वर्ब की एरर है यहाँ पे, तो थर्ड के बी में होना चाहिए. तो ये ऑप्शन कैसे होगा, 1 का सी, थर्ड का बी, सेकंड का डी. विच प्रायोरिटाइज, यस राइट. यहाँ पे अगर आप ट्रेस्ड करोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डंप में एस लगेगा, डंप्स सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इज आएगा. देन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हैज आएगा, है ना, एज पर्सन के अकॉर्डिंग हैज आएगा. और यहाँ पे विच प्रायोरिटाइज, तो प्रायोरिटाइज आएगा ना यहाँ पे. तो सेकंड का डी लग रहा है मुझे, तो ये होना चाहिए इसके हिसाब से. इसमें क्या करना है, फ्रेज हैज बीन गिवन इन बोल्ड, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेस्ड द बोल्ड without changing the meaning. Okay. Be of help too. The ultimate goal of attention management is to recognize which brain state you are in and then shift to the one that will be of help to you. Help to you, to benefits to you, profited, favorable advantages. So one that will, क्या लिखा हुआ है, द अल्टीमेट गोल, जो गोल है वो क्या करना, बेनिफिट होना चाहिए, प्रॉफिटेड. विल भी लिखा हुआ है, सॉरी बी नहीं लिखा हुआ है, विल के साथ वो फर्स्ट आएगी. तो बेनिफिट्स नहीं हो सकता, प्रॉफिटेड नहीं हो सकता, फेवरेबल का कोई सेंस नहीं, एडजेक्टिव है, और ये भी नहीं. तो सर्व हो जाएगा, सिंपल है तो, क्योंकि विल के साथ वर्ब फर्स्ट आएगी. दे फेल टू अंडरस्टैंड, फेल टू अंडरस्टैंड मीन्स they fail to understand, पूरा पढ़ते हैं यहाँ पे. रिसर्च shows that these strategies are ineffective because they fail to understand. mistook to understand, misapprehend, ये सही लग रहा है. grasp का कोई सेंस नहीं, appreciation भी नहीं होगा, वर्ब आएगी ना.
तो ग्रेस अप्रिशिएशन तो आएगा नहीं, वर्ब आएगी तो लास्ट के दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। मिसटूक वर्ब सेकेंड फॉर्म का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ मिस एप्रीहेंड टू, फेल टू अंडरस्टैंड मतलब मिस एप्रीहेंड, यानी किसी चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो सही था, सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, विच इज रिडेंडेंट। ओके, द मोटरसाइकिलिस्ट फॉलोड आफ्टर, तो फॉलोड के साथ आफ्टर नहीं आता है, तो सिंपल है यार। शी ब्राउज्ड थ्रू द इंटरनेट, ब्राउज्ड द इंटरनेट होता है, थ्रू का कोई सेंस नहीं है। आफ्टर सो मेनी ईयर्स द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू मीट टुगेदर, टुगेदर यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि मीट एट द रेस्टोरेंट सिंपल सही है ना। ये सिंपल क्वेश्चंस थे। यहाँ पे क्या करना है, कन्वे द सेम मीनिंग, इसको बाद में करेंगे, बहुत रीडिंग करनी पड़ेगी इसमें। यहाँ क्या करना है, सिलेक्ट दोज पेयर फर्स्ट। ओके, यहाँ पे वही करना है कि इसका जो है, इसमें वैसे सही फाइंड करना है, रॉन्ग फाइंड करना है। मे नॉट बी रिफ्लेक्ट द मीनिंग, सिलेक्ट द ऑल दोज पेयर हैव द फ्रेजेस कंटेन फर्स्ट सेकेंड सेंटेंस, मतलब सही वाला फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं। रीड क्या करना है इसको, रन इनटू द सैंड, तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए। द यंग कंपनी शोड ग्रेट प्रॉमिस एंड बिगन मेकिंग सम रियल ग्रोथ बट रिसेंटली दे वर रन इनटू द सैंड, यानी ही गेट्स टाइम्ड एट टाइम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू सर्टेन इंफॉर्मेशन सोर्सेस। तो यहाँ पे मुझे सही लग रहा है, बट अगला वाला देखते हैं कि वी हैड आईज लाइक सॉसर्स with when mom and aunt Julie started screaming at each other, यानी the excitement of starting a new job always mingled in a certain apprehension, everyone watching their smoke, everyone watching their smoke, so Mary Jane was hearing to, इसमें मेरे को एक भी आ नहीं रहे हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा ये हो पाएगा। देखो, रन इनटू द सैंड मतलब है कि कंपनी जो है, बट रिसेंटली देवर रन मतलब अभी क्या है कि वो कंपनी जो है वो डूब रही है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ नेगेटिव होगा, लैक ऑफ एक्सेस टू सर्टेन, मुझे यहाँ पहला सही लग रहा है, तो अगर फर्स्ट सही होगा, वी हैड आइस लाइक सॉसर, स्क्रीमिंग यानी कि लड़ाई कर रहे हैं, राइट, स्क्रीमिंग एट ईच अदर, तो न्यू जॉब से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव बात कर रही है, एक्साइटमेंट ऑफ स्टार्टिंग एट न्यू जॉब, आइस लाइक दिस एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग, नेगेटिव बात कर रहा है, तो ये वाला सेंटेंस मुझे नहीं लग रहा है कि इसको सेम कर रहा है। एवरीवन इज वॉचिंग द स्मोक टू सी हाउ दे डू द कॉम्पिटिशन, ओके, मैरी जेन वॉज येनिंग टू मीट द हैविंग द प्रॉमिस्ड बाइसेल, तो सेकेंड थर्ड मुझे रॉन्ग लग रहा है, तो फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन कहाँ पे, फर्स्ट तो ऑप्शन है ही नहीं। ओके, एक्सेप्ट सेकेंड एंड थर्ड हो सकता है, क्योंकि मुझे फर्स्ट सही लग रहा है और फर्स्ट ऑप्शन में सिंगल दिया नहीं है, और इन दोनों का अगर वैसे तो मेरे को नहीं पता है इनका मतलब क्या है, बट अगर वो पूरा सेंटेंस पढ़ो तो उससे समझ में आ रहा है कि इन दोनों सेंटेंस में सेम बात कर नहीं रहा है, सेम सेंस नहीं आ रहा दोनों सेंटेंस का, इसलिए एलिमिनेट हो जाएंगे। देन ये सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, पीपल फेल्ट सालियांट टू अ fictional simulation of a pandemic became a drawn threat become a pandemic threat, people felt pandemic too, तो पहले में बी तो नहीं आएगा, लास्ट एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन ए देखते हैं, सालियान टू तो कोई सेंस नहीं आ रहा, ए भी नहीं आएगा, सी देखते हैं। पीपल फेल्ट ड्रॉन टू अ फिक्शनल सिमुलेशन ऑफ अ सालियांट व्हेन अ रियल पैंडेमिक बिकेम, people felt drawn to a fictional simulation of a pandemic, ये सही लग रहा है, when a real pandemic became a salient threat, yes, तो ये सही है, तो सी ए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हॉरर मूवीज, अरे यार इसी से एलिमिनेट हो जाएगा, हॉरर मूवीज ही आएगा, तो एफ पहला आएगा, तो दो ऑप्शन है, और लास्ट में बी वाले से पैंडेमिक से स्टार्ट नहीं होता, एलिमिनेट हो गया, टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसे करना चाहिए था। यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट करना है, पीपल फेल्ट सालियान टू अ फिक्शनल, ओके, पीपल फेल्ट ड्रॉन टू अ फिक्शनल सिमुलेशन ऑफ अ पैंडेमिक व्हेन द रियल पैंडेमिक बिकेम सालियान थ्रेट, हॉरर मूवीज स्टिल मैनेज टू सिक्योर अ मच लार्जर शेयर ऑफ द बॉक्स ऑफिस ड्यूरिंग दिस टाइम, ये वाला पूरा इजीली बन जाता है, इससे एलिमिनेट कर सकते थे। तो यहाँ पे बात कर रहा है, अच्छा ये देखते हैं, नेवरथलेस और नॉनथलेस का मतलब सेम होता है, इन कंक्लूजन अलग चीज है, तो कंक्लूजन की कोई बात नहीं है, थर्ड नहीं होगा, दो ऑप्शन रिलेट हो जाते हैं, और पहले दोनों का सेम मतलब है, तो यहाँ पे हमें नहीं भी आता होगा तब भी हम टिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइंड करना है कौन से करेक्ट पैसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है पैसेज रीड करके होगा,
मार्क पर रिव्यू कर देते हैं, बाद में पैसेज रीड करेंगे तो करेंगे। ये वाला क्वेश्चन पैसेज से स्किप करते हैं। पैसेज से है एप्रोप्रिएट टाइटल, काफी लेंदी, बहुत रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में भी यही आते हैं। ये वाला क्या करना है यहाँ पे, ओके ये क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आउट ऑफ द 5 सेंटेंस 1 सेंटेंस विच डज नॉट फिट इन द अरेंजमेंट, और ये पैराजम्बल है, इसको करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस फिट नहीं होगा, ये भी बोल रहा है, ठीक है। 5 सेंटेंस हैं, PQRST। अ ब्लैंक फॉलोज स्टेटमेंट P, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिट। ये पहले इसको भी बनाना पड़ेगा, देन ये पूरा जम्बल है, इसको बाद में करते हैं। इस पे 3 क्वेश्चंस हैं, एक काम करते हैं, इजी क्वेश्चन क्या है इसमें वो कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इन द अरेंजमेंट। विथ ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी सच कॉल्स, टेक्स्ट, चैट एंड सोशल मीडिया पोस्ट, अदर्स पेरेंट्स कैन मॉनिटर एस एम्स स्पाई, टीन safe, family tracker, and need privacy and a sense of individual space to develop their own identities, and it can be almost unbearable adolescence in a critical time in kids' lives when they for parents to watch their children pull away. Regularly delivering terrifying clickbait headlines of abduction danger to the modern media, which many experts support the tracking of children and attribute the shift. Tool presents parents new digital spy with an but these parents to filtrate the dark corners of the children personal life, good but as tempting as for। तो मुझे यहाँ पे सब में ना चिल्ड्रंस नीड प्राइवेसी इन द चिल्ड्रंस, सोशल मीडिया पोस्ट और उससे रिलेटेड चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, तो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेगुलरली डिलीवर्स टेरिफाइंग क्लिकबेट हेडलाइंस ऑफ एबडक्शन एंड डेंजर टू द मॉडर्न मीडिया, कैन नॉट बी adolescents to critical time in kids' life when the parents watch the children pull away. Privacy and sense of development of their many experts support the tracking of children attribute this shift. ट्रैकिंग ऑफ चिल्ड्रन, इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देती हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच आर फॉलोइंग इन कंक्लूडेड द पैसेज। ये पैसेज छोटा है, इसको रीड करके क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। One of the most difficult parts about negative self-attack is that the things we tell ourselves are oftentimes true. This could lead you to think that if what I am saying to myself is true, then should not I make the space to share these things with myself? The answer to that question that is no, and I will tell you why. Sometimes the truth is not helpful, it's hurtful and painful. Okay, if you are interested in exercising more and becoming healthier, negative self-talk in this situation may mean you look in the mirror and think, I hate the way I look. These thoughts can feel very real to us, but they will not serve us in our pursuit of happiness. To overcome the patterns of negative self-talk, we must first be aware of it. For those folks who speak negatively to themselves regarding their health habits, they might pass by a mirror and think, you look fat and horrible, or they might see a photo of themselves that they hate and think, I look awful. Those are horrible thoughts and things we would never say to someone else. If you were trying to motivate a friend to lose weight or work through a personal issue, you might say, I love you just the way you are, and support you as you work through something that is difficult. I am here in any way that you need me. I believe that can we speak to ourselves in this way? It just might take some practice. Once we are aware of our negative self-talk, the next step is to change our thought patterns. More specifically, we must replace negative self-talk with kindness and compassion. We must remember that our words matter and that someone is on the receiving end, and so we must be kind to others. In addition to practicing kindness towards others, it is important to practice thinking kind thoughts about others, and these kinds of behavior change our negative mindset into a positive one. पूरा जो पैसेज है वो बात कर रहा है, ठीक है, कि कैसे हम
अपने ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है उसे टैकल कर सकते हैं। पूरा पैसेज इस बारे में बात कर रहा है कि अपने आप को नेगेटिव थॉट से कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो कौन सा कंक्लूड करता है, इफ यू स्टॉप नेगेटिवली टॉकिंग अबाउट द पीपल अराउंड यू देन गॉड विल शोवर यू विद द नो गॉड वर्ड की हाँ कोई बात नहीं हुई है, तो पहला तो होगा नहीं। इफ वी लर्न टू प्रमोट द गुड बिहेवियर शोन बाय अदर्स देन वी एक्सपेक्ट गुड बिहेवियर फ्रॉम देम एज वेल। यहाँ सारी चीजें अपने बारे में बात हो रही हैं, तो इसमें दूसरे की बात नहीं कर रहा कि दूसरे को जैसा हम करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। द ऑथर इज प्रमोटिंग वाइल सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड एक्सप्लेनिंग हाउ टू टॉन्ट अदर्स, ऐसा भी बात नहीं की गई है। इफ इट इज एडवाइज दैट वी मेक इट अवर गोल टू डिसमेंटल द इंडिया वो अदर मेक द पीपल प्रूव हिमसेल्फ, इट इज एडवाइज दैट वी मेक इट अ गोल टू डिसमेंटल द इंडिया और अदर्स, वी मस्ट लर्न टू बी अफेक्शनेट टू अवरसेल्फ। ये बहुत सिंपल है कि इस पूरे पैसेज में अपने बारे में बात की गई और जो ये कंक्लूड कर रहा है कि वी मस्ट लर्न टू बी अफेक्शनेट टू अवरसेल्फ एंड अदर्स एंड इन द प्रोसेस टैकल द हार्श क्रिटिसिज्म इंटेल अपॉन अवरसेल्व्स। तो मुझे ई वाला एकदम सही लग रहा है यहाँ पे। Your friend है Mr. X decides to start learning a new musical instrument and he comes to you for advice on whether he should pursue it or not. Based on the information given in the passage, what would you advise to him? आप उसको क्या एडवाइस करोगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। You want to learn a new instruments, why do you even try? You will never learn anything. ये तो पूरा नेगेटिव बात हो गई। No matter how many instruments you learn, I will always be more talented than you. Not at all. This is great. Do you for it? I am here to encourage you. You need anything? If you need anything, do you really think it is good idea? Don't you already have a lot of in your plate? You have been planning to do that for a long without a result, hence it's better to drop this idea altogether. Do you really think it's good idea? पूरे सेंटेंस में एक पॉजिटिव बात कही गई है, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव कैसे ला सकते हैं, तो मुझे लग रहा है द ग्रेट आइडिया वाला सही होगा कि बाकी तो नहीं पॉसिबल लग रहा है। Which of the following most likely source of the passage? कि the source of the article is food and beverage magazine, history textbook, fiction novel। यहाँ साइकोलॉजी आर्टिकल है, अपने बारे में बात कही गई, तो सिंपल है। What can be understood from the passage? We must remember that our words matter and that someone is on the receiving end. कि when we speak on the phone, यहाँ पे फोन पे कोई बात करने की बात नहीं कही गई है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। It is important to be mindful of one who says someone is, because when a person says something harsh to someone, it feel crestfallen upon hearing it. That author suggests the person's words had no impact on, ये तो होगा ही नहीं। We can speak without any habitation to others people because there is nobody hearing, ये भी wrong है। Our words only matter to people who when we only give something in writing। तो यहाँ पे ऑप्शन से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ये वाला एक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव वर्ड्स की बात कर रहा है, सारी चीजें नेगेटिव बात कर रहा है और पैसे से कोई लेना देना नहीं है इन चीजों का। जैसे यहाँ पे कह रहा है स्पीक ऑन द फोन, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कह रहा है कि कोई इम्पैक्ट नहीं होता है बोलने का, ये भी रॉन्ग है। वी कैन इन्फ्लुएंस टू पर्सन व्हेन हियरिंग सेइंग एनी वे, नोबडी हियरिंग, कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पे कह रहा ओनली समथिंग इन राइटिंग, कोई बात नहीं की गई राइटिंग की, तो ये तो सिंपल पैसेज था। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी, इसको छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं। तो इसको पूरा रीड करना पड़ेगा, हमारे पास टाइम भी तो नहीं है। मैं पैसेज से यहाँ फाइंड करने की कोशिश करती हूँ। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एन एनर्जी सोर्स फॉर कोयल बट इलेक्ट्रिक मोटर्स की कहाँ बात की गई है। बट पैसेज को रीड तो करना पड़ेगा वरना क्वेश्चन तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको स्किप ही कर देते ना। यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा पैसेज से अलग है, विल नॉट फिट। तो अगर इन सबको मैंने पढ़ा तो मेरे को इससे क्या आइडिया लगा था कि मुझे लग रहा था कि जो टूल्स प्रेजेंट पेरेंट्स न्यू डिजिटल स्पाई विद द क्वांट्स बट दिस सारे को पहले तो यहाँ पे बनाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही होगा करना। ये सारे रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं। वो पैसेज जी था, बाकी पता नहीं, बट रीड करने का टाइम नहीं है। द इनकोक्लास्ट who overrun the capital establishment political trenches with an anti-corruption campaign is pinning his hope on the anticipated fiscal measures, urban health development in the capital, national capital, corruption campaign,
स्पिनिंग हिज होप, ट्रेंचेस, एंटी करप्शन कंपेन। ये क्वेश्चन तो होगा नहीं, मेरे से नहीं आ रहा मुझे, ये वाले दोनों स्किप ही कर देते हैं।